Good morning, children. This is class 3 value education class, and today we are going to study chapter number 7, the wounded swan. Okay, and the value of this chapter is kindness, means दया की भावना, kindness होना, दया की भावना रखना. ठीक है. And the heading is the wounded swan, यानी कि घायल हंस. Swan is we can say it is a kind of a bird which can fly also and which can swim in the water also. Okay, so this is very beautiful and big type of bird, and you can see in the photograph on page number 25 that they are flying in the sky. They fly in the sky also, and when they come on the land part they can swim. Okay, and if you happen to go to a zoo in any big city like Lucknow or Kanpur, Delhi, then there you can see swans definitely. Okay, so if you get a chance to go, just go and just try to see how swans look. They are very beautiful. Okay, so the wounded swan means घायल हंस बोलते हैं उसको. Introduction. Prince Siddharth was very kind to people and animals. Here we are going to study a story about the childhood of the Prince Siddharth, who later on became Gautam Buddha and who was the founder of Buddhism. Okay, Buddhism was spread all over the world. In many countries there are some Buddhist people who believe in Buddhism, and Gautam Buddha was the founder of Buddhism. ठीक है. Prince Siddharth was and in his childhood his name was Siddharth. Later on he became Gautam Buddha. Okay, so Siddharth is the same person, Gautam Buddha. ठीक है. He was prince. वो एक राजकुमार था. His father was a king Shuddhodhan. His name was Shuddhodhan, and he was the king of Kapilvastu, which is somewhere in near the or in Nepal area. Okay, so Prince सिद्धार्थ वॉज वेरी काइंड टू पीपल एंड एनिमल्स. सिद्धार्थ जो था वो बहुत बचपन से ही बहुत दयालु था लोगों के प्रति और जानवरों के प्रति. उसके दिल में बहुत दया थी. ही हैड वेरी ग्रेट फीलिंग ऑफ काइंडनेस. दया की भावना बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर. दो ही वॉज ए प्रिंस, ही वॉज नॉट प्राउड. वो हालांकि वो एक प्रिंस था, राजा का बेटा था, लेकिन वो घमंडी नहीं था. वो ही वॉज वेरी सिंपल बॉय who had his heart was full of kindness towards the people and the animals. ठीक है. उसके दिल में बहुत दया थी. बिल्कुल घमंडी नहीं था. although he was a son of a king. He always worked to make others happy. अब वो हमेशा ऐसे काम करता था जिससे कि दूसरे लोग खुश हों. He used to feel good to make the people happy. लोगों को खुश रखने की कोशिश करता था. He grew up to become गौतम बुद्ध, और वो जब बड़े हुए तो वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए. ठीक है. तो अभी उनको गौतम बुद्ध के नाम से ही हम लोग उनको जानना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट हिज चाइल्डहुड. दैट इज़ वाई हिज चाइल्डहुड नेम इज़ being we are taking this name in this story. That was Siddharth. Okay, he grew up to become Gautam Buddha, the founder of Buddhism. Okay, बुद्धिज़्म के फाउंडर थे. उन्होंने बुद्धिज़्म एक बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी. उन्होंने शुरुआत करी थी उसकी. वो फाउंडर कहते हैं किसी चीज़ की फाउंडेशन डालने वाला, यानी कि द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्ट्स एनीथिंग. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज अबाउट हिज लव फॉर लिविंग बींग्स. और ये जो एक स्टोरी है, जो इसकी उनकी जीवन की कई कहानियाँ हैं, उनमें से ये कहानी है विच शोज़ एंड टेल्स अस अबाउट हिज लव फॉर लिविंग बींग्स, यानी कि जीवित प्राणी कोई भी, एनीवन, अदर बर्ड और एनिमल और ह्यूमन बींग्स. ही हैड लव फॉर एवरीवन. लिविंग बींग्स यानी जो जिंदा जितने भी प्राणी होते हैं, जीवित प्राणियों के लिए, सबके लिए उनके हृदय में बहुत
उनके दिल में बहुत लव था, बहुत प्यार था, प्रेम था. ओके, सो नाउ द मेन स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. One day, young Prince Siddharth was walking in the forest with his cousin Devdutt. Devdutt was carrying bow and arrows. एक दिन what happened one day? Young Prince Siddharth was walking in the forest. वो लोग जंगल में. Prince Siddharth was walking in the forest with his cousin. Cousin means he was his चचेरा, चाचा का बेटा, means चचेरा भाई था. As I know, cousin था, means कि his father and his father the king and Devdutt's father were both were brothers. जैसे आपके घर में आपके पापा के छोटे भाई, उनका बेटा जो होता है आपका चचेरा भाई होता है, तो सेम वे सिद्धार्थ एंड देवदत्त वर ब्रदर्स ऑफ टू, देयर फादर्स वर ब्रदर्स. तो उसके चाचा का लड़का था. देवदत्त वॉज कैरिंग बो एंड एरोज. और देवदत्त जो थे वो अपना पीठ के ऊपर, उसके ऊपर शोल्डर पे अपना वो धनुष और बाण, बहुत सारे बाण लेके जा रहे थे. एज यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ दैट ही इज एमिंग हिज बो एंड एरो टुवर्ड्स द एट द swans which are flying in the sky. Okay, पुराने in the old times the all the prince used to get the training to use this. Okay, because they, when they used to become kings, they had to go in the war with any other king. So उनको they were expert in all those. Okay, so this was an art and they had to learn it. So they saw 3 beautiful wild swans flying overhead. और उन दोनों ने क्या देखा कि बहुत 3 ब्यूटीफुल वाइल्ड, मतलब जंगली थे, वो किसी के पेट नहीं थे, वो देवर वाइल्ड, मतलब अपने से उड़ रहे थे, जंगल के थे, जंगल से उड़ के इधर अपने से जा रहे थे और वो ऊंचाई पे उड़ रहे थे, थोड़ी ऊंचाई पे. देवर फ्लाइंग ओवरहेड, यानी कि उनके सर के ऊपर से ऊंचे पे उड़ रहे थे. सिद्धार्थ, ओ हाउ ब्यूटीफुल दीज स्वान्स आर. व्हेन सिद्धार्थ सॉ दो स्वान्स he uttered these words. Oh, he was happy to see them. He said he was seeing the beauty of those swans, because the swans are really very beautiful birds. बहुत सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, अच्छे लगते हैं. they have a very long neck and they are white, एकदम सफ़ेद, बहुत सुंदर कलर में होते हैं. and they are big also. then how beautiful these swans are. वो सिद्धार्थ ने बोला कि ये हंस जो हैं ये कितने. Then this next line, Devdutt aiming an arrow at one of them. Yes, I must get one of them. So on one hand, Siddharth was only appreciating their beauty, and Devdutt was bound to shoot an arrow at one of them. वो तो because he was already carrying bow and arrow, so उसने सोचा कि this is a golden chance, मुझे इनको एक को मारना है. ठीक है, मैं एक को धनुष तान के और मैं एक तीर उसको मारूंगा, बाण से मार के उसको गिराऊंगा, शिकार करूंगा. ठीक है, ही वांटेड टू हंट द स्वान. यस, ही सेड. वो उसने तुरंत ही उसकी ओर तीर ताना और उसने कहा आई मस्ट गेट वन ऑफ देम, मुझे उनमें से एक चाहिए. द एरो हिट वन ऑफ द स्वान्स एंड इट फेल ऑन द ग्राउंड. बिफोर सिद्धार्थ कुड स्टॉप हिम, उसने वो एरो को जो था वो शूट कर दिया और वो जाके सीधा एक वन ऑफ द स्वान्स के लग गया, यानी एक उनमें से एक हंस के लग गया. एंड इट फेल, वो घायलों के ज़मीन पे गिर गया. सिद्धार्थ, ओ नो दिस इज़ नॉट राइट. और सिद्धार्थ ने जब देखा कि वो घायलों के ज़मीन पे गिर रहा है तो उसने कहा कि अरे नहीं, ये सही नहीं कि हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ. ही ran to spot where the bird fell. और वो उस जगह पे तुरंत दौड़ के गया जहाँ पे वो पक्षी जो था, हंस जो था, वो गिरा था. He picked up the wounded bird and gently and stroked it. उसने क्या करा कि उसको धीरे से उठाया. Gently he picked up the wounded bird and he stroked. Stroked means, children, here its meaning is pass hand gently over hair or fur. यानी धीरे धीरे उसको सहलाना, उसको पुचकारना, इस तरह से अपने by his hand, by he was consoling. ओके, उसको पुचकार के उसको सांत्वना दे रहा था कि बिकॉज ही वॉज दिस बर्ड वॉज wounded. An arrow was sticking out of its wing. और एक उसने देखा कि
वो जो एक एरो जो है उसके उसके एक पंख में लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि उसमें पियर्स उसमें घुसा हुआ है वो, ठीक है। सिद्धार्था, ओ पुअर बर्ड, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। और सिद्धार्थ ने उसको पुचकारते हुए, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि पुअर बर्ड, बेचारा पक्षी जो है चोट खाया है। फिर उससे कहता है कि डोंट वरी, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी केयर करूँगा, मैं तुम्हारे को देखभाल करूँगा, तुम्हें संभालूंगा। विद ग्रेट केयर ही टुक आउट द एरो, उसने धीरे से फिर बहुत ही ध्यान के साथ उसके एरो को उसके पंख में से बाहर निकाल दिया। ही देन अप्लाइड जूस फ्रॉम क्रश्ड लीव्स एंड ड्रेस्ड द वुंड विद द लीव्स। और उसने क्या करा कि बिकॉज दे वर इन द जंगल, सो दे हैड मैनी सॉर्ट ऑफ दिस ट्रीज which had medicinal value and they knew about it, so he crushed the leaves। उसको पता था कि कौन से पेड़ की पत्ती जो है वो दवाई का काम करेगी, तो उसने उसकी पत्तियों को क्रश किया और उसके वुंड को पे लगा दिया और बड़ी पत्तियों से उसको ढांक दिया, जैसे कि पट्टी एक तरीके से बांट दी, बिकॉज दैट इज़ वॉट वॉज अवेलेबल इन द जंगल। वहाँ कोई मरहम पट्टी कोई दवा नहीं थी, तो उसे पता था कि कौन सी पत्ती मुझे लगानी है। और पुराने समय में ऐसे ही लोग किया करते थे। ओके, जस्ट देन देवदत्त केम रनिंग, और जब तक देवदत्त दौड़ के उसके पास आया। देवदत्त, दैट इज़ माई स्वान, आई शॉट इट, गिव इट टू मी। और देवदत्त उससे कहने लगा कि ये हंस को जो तुम लिए हुए हो ये मेरा है, क्योंकि मैंने इसे एरो से मारा है, मैंने इसे शूट किया है, तो ये मेरा है, गिव इट टू मी, मुझे दे दो, ठीक है। सिद्धार्था, यू कैंट हैव इट, इट इज़ अ वाइल्ड स्वान, इट डजेंट बिलोंग टू यू। उस सिद्धार्थ ने 3 बातें उसको बोली। उसने कहा तुम इसे नहीं ले सकते, ये तो एक जंगल से आया है, ये तुम्हारा पालतू तो है नहीं, ठीक है, ये तुम्हारा कोई राइट इसके ऊपर नहीं है, बिकॉज इट इज़ वाइल्ड। वाइल्ड मैंने जंगल से कहा है, जंगली है, ये किसी का नहीं है, ठीक है, तुम्हारा नहीं है। इट डजंट बिलोंग टू, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुमसे संबंधित नहीं है, तुम्हारा नहीं है, यू कांट टेक इट, ठीक है। उसने कहा नहीं, ये तुम इसे नहीं ले सकते। देवदत्त ने आर्ग्यूमेंट किया, ही सेड आई शॉट इट सो इट इज़ माइन। देवदत्त ने कहा मैंने इसे तीर मारा है, इसलिए ये मेरा है। सिद्धार्थ, यू आर राइट, बट दिस स्वान इजंट डेड, इफ़ यू हैड किल्ड इट इट वुड हैव बीन योर्स, बट नाउ सिंस इट इज़ ओनली वुंडेड बट स्टिल अलाइव, इट बिलोंग्स टू मी। अब सिद्धार्थ ने बहुत लंबी बात बोली, आई एम जस्ट टेलिंग यू। उसने कहा कि सिद्धार्थ टोल्ड देवदत्त, a argument is going between these two. This is Devdutt and this is Siddharth. Okay, the Siddharth is here in the red dress. Okay, red clothes. Siddharth said, "You are right. हाँ तुम सही हो, but this swan is not dead." वो तुमने उसको शिकार करने की नीयत से उसको मारा है, लेकिन वो अभी डेड नहीं हो, मरा होता तो शिकार कर ले जाते तुम उसको। But he said कि स्वान इज़ नॉट डेड, वो अभी मरा नहीं है। अगर तुमने उसे मार दिया होता तो ये तुम्हारा हो जाता, अगर वो डेड हो गया होता तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं तुम्हें ले जाने देता, ठीक है। बट नाउ सिंस इट इज़ ओनली वुंडेड, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये केवल घायल हुआ है, ये मरा नहीं है, बट स्टिल अलाइव, लेकिन अभी ज़िंदा है, इट बिलोंग्स टू मी। उसने कहा कि अब मेरे को पूरा राइट है कि मैं इसको उठाऊँ, उसकी केयर करूँ, उसके ऊपर दवा लगाऊँ, उसको ठीक करूँ, एंड मैं उसकी जान बचाऊँ, बिकॉज ही हैड अ ग्रेट feeling of kindness towards the living beings. So children, I'm taking this story up to this point, okay, and rest of the story, although in the Zoom class also I will discuss this story once again, and I have already discussed it in the last Zoom class on 2nd October. So again I will do it so that you understand it in a better way, और आपको याद भी रहे। आप 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे तो you will come to know and you will learn it, you will remember it. Okay, thank you.